شاہ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے شاہ نیوز۔ حکومت کی جانب سے کالجز کو مائنورٹی فیس ریمبرسمنٹ اسکیم کے تحت بقایا رقم کی ادائیگی میں تساہلی کی وجہ سے آج تک کئی طالبات تعلیم کی تکمیل کے باوجود اپنی تعلیمی اسنادات سے محروم ہیں اور اپنے مستقبل کے متعلق بے چینی کا شکار ہیں، کیونکہ کالج انتظامیہ فیس کی عدم ادائیگی پر طلبہ کو اسنادات جاری نہیں کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار محمد تقی حسین تقی، کنوینر ملی اتحاد نے محبوب نگر میں منعقدہ ایک صحافتی کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کیا۔ اس صحافتی کانفرنس میں خواجہ فیاض الدین انور پاشا سرپرست، حافظ ادریس سراجی کو کنوینر، مرزا قدوس بیگ کو کنوینر، محمد نور اللہ خان جوائنٹ کنوینر اور دیگر بھی موجود تھے۔ محمد تقی حسین تقی نے مزید کہا کہ سابقہ حکومت نے بھی اس خصوص میں بے اتنائی کا مظاہرہ کیا تھا اور مسلمانوں نے اس کا بدلہ اس جماعت کو اقتدار سے بے دخل کرتے ہوئے لیا۔ موجودہ برسر اقتدار کانگریس پارٹی نے انتخابات میں مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ فیس ریمبرسمنٹ اسکیم کے تحت بقایا رقم اقتدار میں آتے ہی کالجز کو ادا کر دی جائے گی تاکہ طلبہ کو درپیش مسائل سے چھٹکارا حاصل ہو سکے، لیکن آج کانگریس پارٹی کو اقتدار میں آئے 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور حکومت فیس ریمبرسمنٹ کے بقایا جات ادا کرنے میں تساہلی برت رہی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں طلبہ کا مستقبل تاریک ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ کالج انتظامیہ اب اس اسکیم کے تحت نئے طلبہ کو داخلہ دینے سے بھی گریز کر رہے ہیں اور اس طرح کئی ہونہار مستحق طلبہ کو اعلیٰ تعلیم سے محرومی کا خوف ہے۔ محمد تقی حسین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری اس اسکیم کے تحت کالجز کو بقایا رقم ادا کریں اور ایک حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کالج انتظامیہ کو نئے داخلوں کے لیے پابند کریں۔ اگر ایسا نہ ہونے کی صورت میں ملی محاذ کی جانب سے زبردست ریاست گیر احتجاج ناگزیر ہوگا۔ اس خصوص میں چیف منسٹر ریونت ریڈی اور قائد مقننہ مجلس اکبر الدین اویسی کو مراسلہ روانہ کیا گیا ہے۔ پریس کانفرنس ہمارے ہردل عزیز تلنگانہ چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے، جیسا کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا کسانوں کے قرضے معاف کرنے کے تعلق سے، وہ الحمدللہ اس کی تکمیل ہو رہی ہے، اور ساتھ میں ہم جو الیکشن سے پہلے 2023 میں ہمارے چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا مسلمانوں کے تعلق سے کہ مسلمانوں کے لیے ڈکلیریشن دیں گے، اور جو اسکیمات اس سے پہلے جیسے کہ 4% ریزرویشن کا راجشیکھر ریڈی صاحب کے دور کا تھا، لہٰذا اس کو ہم جاری رکھیں گے، اور آگے بھی ہے سو کہ جو بچوں کو پڑھنے کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے ہم برابر وعدے پہ قائم رہیں گے، یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 2014 سے آج تک جو بچے تعلیم پائے ہیں، بہت سارے بچوں کے سرٹیفکیٹ کالجوں میں رکے ہوئے ہیں، کیونکہ کالج کے انتظامیہ بچوں کے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے اعتراض جتا رہا ہے، کیونکہ فیس ریمبرسمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بچوں کے سرٹیفکیٹ کو رکا کر رکھے ہیں، اور بچوں کے آگے تعلیم میں بہت سے مشکلات پیدا ہو رہے ہیں، آگے ان کو نوکریوں میں مشکلات پیدا ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ آپ کالج کے انتظامیہ کو متوجہ کیجیے اور تاکید کیجیے کہ بچوں کے سرٹیفکیٹ فوراً دے دیا جائے، تاکہ بچے آگے اپنا ایجوکیشن جاری رکھیں اور نوکریوں میں بھی ہے سو کہ ان کو مواقع مل سکے۔ لہٰذا ہم ہمارے چیف منسٹر صاحب سے امید کرتے ہیں کہ اس پر فوری اقدام کریں گے، اور جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے میں، جو انہوں نے الیکشن میں وعدہ کیا اس کو پورا کرنے میں اگر پیش کہے تو مسلمان قوم ہمیشہ ان کی
एहसान मंद रहेगी। और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हमारे दोस्त का हमारे मिली महाज के कन्वीनियर तकी हुसैन तकी साहब आपसे बयान करेंगे। किसी भी कौम को अगर तरक्की करना है तो उस कौम को तालीमी मैदान में तरक्की करना ज़रूरी है। और इसी के पेश नज़र 2004 में जब रियासत में कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आई तो उस वक्त के वज़ीर आला वैएस राजशेखर रेड्डी ने मुसलमानों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के लिए फ़ीस रीइंबर्समेंट जैसी स्कीम का आगाज़ किया, जिसकी वजह से उन तमाम होनहार मुस्लिम तलबा को आला तालीम हासिल करने का मौका मिला जिनके वालिदैन गरीब और सतह गुरबत से नीचे ज़िंदगी बसर करते थे। उन तलबा को फ़ीस रीइंबर्समेंट के तहत मुख्तलिफ़ पेशा वाराना कोर्सेस में दाखिले मिले, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में दाखिले मिले और कई एक इंजीनियर्स डॉक्टर्स बनकर आज हमारी खिदमत कर रहे हैं। लेकिन वैएस राजशेखर रेड्डी साहब के दौरे इख्तियार के बाद, उनके इंतकाल के बाद ऐसा लग रहा है कि इस तरह की स्कीमात को मफलूज कर दिया गया है। हमने देखा कि साबिक़ा हुकूमत ने भी फ़ीस रीइंबर्समेंट की जो बकायाजात कॉलेज को देने थे वो अदा नहीं किए। 10 साल तक साबिक़ा हुकूमत ने लीत लोलाल का मुजाहरा किया, जिसके वजह से रियासत के मुसलमानों ने उसको सबक भी सिखाया और इक़्तिदार से दूर कर दिया। लेकिन 2023 के आम इंतखाबात से पहले जिस तरीके से कांग्रेस कायदीन के सामने ये बात आई कि 10 साल से फ़ीस रीइंबर्समेंट की रकम कॉलेज इंतज़ामिया को अदा ना किए जाने की वजह से तलबा को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन उनके सर्टिफिकेट्स कॉलेजेस रोक ले रहे हैं। वो इसलिए कि हुकूमत उन्हें फ़ीस रीइंबर्समेंट का बकाया अदा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से कई बच्चे जो सो मज़ीद आला तालीम के लिए आगे जाने से महरूम रह गए और मुलाजिमतें हासिल करने से महरूम रह गए। इस रियासत में हज़ारों तलबा को नुकसान हुआ। जब ये बात कांग्रेस पार्टी के सामने आई तो उन्होंने कहा अपने इंतखाबी मंशूर में कि जब वो इक़्तिदार पर आएंगे तो सबसे पहले स्कॉलरशिप और फ़ीस रीइंबर्समेंट के जो भी बकाया जाता है उसको अदा कर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार में आए मुसलसिल 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने के बावजूद, इतने अरसे के बावजूद भी हुकूमत इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आप देखते हैं कि ये नया तालीमी साल शुरू हो चुका है और कई बच्चे पास आउट हो चुके हैं कॉलेजों से, लेकिन वो कॉलेज इंतज़ामिया वो बच्चों को अपने सर्टिफिकेट्स देने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि फ़ीस हुकूमत तुम्हारी फ़ीस बाकी है, अगर फ़ीस अदा कीजिए आपके सर्टिफिकेट लेकर जाइए। तो गरीब तलबा कहाँ से वो 4 साल की फ़ीस 3 साल की फ़ीस अदा करेंगे? उनको काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। उसके अलावा जो तलबा नए अब कॉलेज में जा रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि भाई फ़ीस रीइंबर्स स्कीम के तहत आपको दाखिले नहीं दिए जाएंगे। अगर आपको दाखिला होना है तो आप पूरे 4 साल की फ़ीस में आपको दाखिला लो। तो फिर कहाँ वो गरीब ख़ानदानों के बच्चे आला तालीम से महरूम हो जाएंगे? क्या हुकूमत की तसाहुली से ये हमारे नौजवान जो होनहार तलबा हैं जो आला तालीम हासिल करना उनका हक़ है, क्या वो अपने हक़ से महरूम हो जाएंगे? कब तक हुकूमत आंख बंद करके बैठी रहेगी? ये जिम्मेदारी है हुकूमत की, वो फौरी फ़ीस रीइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप की जो रकूम कॉलेज इंतज़ामिया को बाकी हैं फौरी तौर पर अदा करे। अगर अदा करने से हुकूमत के पास कोई दुश्वारी है तो कम अज़ कम एक जियो जारी करके कॉलेज इंतज़ामिया को पाबंद करे कि नए तालीमी साल में बच्चों को तो फौरी दाखिले दिए जाएँ फ़ीस रीइंबर्समेंट स्कीम के तहत, और जो बच्चों के असनादात या सर्टिफिकेट रोके हुए उन बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जाएँ। कम अज़ कम इतना तो भी हुकूमत कर सकती है। हम चाहते हैं कि हुकूमत इस खुसूस में फौरी इक़दाम उठाएँ। हमने जिला कलेक्टर के तवस्सुत से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को भी मुरासिला रवाना किया है और क़ायद मुक़र्रिना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन नबी साहब की हम नुमाइंदगी करेंगे, उनसे कहेंगे, मुतालबा करेंगे वो भी इस खुसूस में असम्बली में आवाज़ उठाएँ और जिस फोरम पर भी हमें जाना होगा हम जाएंगे इंशाअल्लाह। और इस मसले पर हम जो सो हुकूमत को मुतवज्जह करेंगे। अगर हुकूमत फिलफौर इस पर इक़दाम नहीं करती तो हम इंशाअल्लाह 8-10 दिन के अंदर इस खुसूस में एक एहतजाज भी मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तमाम तलबा जो इससे मुतासिर हुए हैं उनको एकजा करेंगे, एकजा करके जो है सो हम ज़रूर इसके ख़िलाफ़ जो है सो हम एहतजाज करेंगे ताकि हुकूमत इस तरफ मुतवज्जो हो सके और जो सो फ़ीस रीइंबर्समेंट की जो बकायात हैं फौरी अदा कर दें और जो बच्चे जो नए दाखिला ले रहे हैं उनको भी सहूलत फराहम हो सके। हम हुकूमत तेलंगाना बिलखुसूस हमारे ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ़ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब से ये मुतालिबा करते हैं कि आपको पूरे तेलंगाना के
मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम जमातें सब मिलकर आपको इक़्तिदार में लाई और आप इक़्तिदार में आने से पहले बहुत सारे मुसलमानों से वादे किए थे। तो लिहाजा हम ये मुतालिबा करते हैं कि तालीम का एक अहम मसला नौजवान लड़कों का, लड़कियों का, जो फ़ीस की बाकी रहने की वजह से बहुत पेचीदा होता जा रहा है, तो हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं, आप मुस्लिम डिक्लेरेशन के ज़रिए से बहुत सारे वादे किए हैं, आप ये अहम तालीमी मसला उसको हल कीजिए। अगर इस सूरत में हमारी बात को अगर नहीं मानी जाएगा, महबूब नगर जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, महबूब नगर ज़िले से, यहीं से सबसे पहले हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तालीमी मसले को उठाएंगे। बड़े पैमाने पे मिली महाज के ज़रिए से हम एहतजाज करेंगे और जो है बड़े पैमाने पे जलसे भी इनेकाद करेंगे और तमाम मुस्लिम तंजीमों को भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो हुकूमत से हमारी मुतालिबा है कि हमारा जो मुतालिबा है कि जो नौजवानों का फ़ीस के बकाया जात का जो मसला है उसको फ़िलफ़ौर हल करे, फ़ौरन हल करे, तो हम जो है हुकूमत का शुक्रिया अदा करेंगे। जिस मसले को लेके आज मिली महाज यहाँ पे प्रेस मीट किया है, फ़ीस रीइंबर्समेंट, मैं सीएम रेवंत रेड्डी साहब से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि रियासत के माइनॉरिटी तलबा के फ़ी रीइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप्स पे आप जल्द से जल्द जो है आप एक फ़ैसला लेते हुए इसको बहाल करें, हमारा ये मुतालबा है।